میں اپنے ماموں کے گھر لاہور رہتی تھی۔ میں اور میری کزن منزہ اکٹھے کالج جاتے۔ ایک روز میں نے شرارت میں اپنے پڑوسی لڑکے کو کہلوایا کہ منزہ تمہیں پسند کرتی ہے، اور ساتھ ہی اس کی تصویریں بھی بھیج دی، جبکہ منزہ اسے جانتی تک نہ تھی۔ میں نے تو اسے شرارت ہی سمجھا، مگر ایک روز یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے۔ جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے۔ بھائی مجھ سے 1 سال چھوٹا تھا۔ ان دنوں ہم راکھی منہ کے نزدیک ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اور کوہ سلمان کے دامن میں واقع تھا۔ شہر سخی سرور سے فورٹ مونرو جاتے ہوئے سب سے پہلے ہمارا گاؤں ہی آتا تھا، گویا ہم میدانی علاقے سے نزدیک ترین پہاڑی علاقے کے مقیم تھے۔ تبھی ہمارے گاؤں کے طالب علموں کو یہ سہولت حاصل تھی کہ میڈل کے بعد وہ اگر میٹرک کرنا چاہتے تو شہر کے ہائی اسکول میں داخلہ لے لیتے تھے۔ تاہم یہ سہولیات لڑکیوں کو حاصل نہ تھی۔ ان دنوں قبائلی علاقوں کی لڑکیوں پر تعلیم کے در وانہ ہوئے تھے، بلکہ یہ تو ناقابل تصور بات تھی۔ ہمارے یہاں لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کا تو تصور بھی نہ کیا جاتا تھا، اور اگر کبھی کوئی غلطی سے اس کا تصور کر بھی لیتا تو برادری والے اس کا بائیکاٹ کر لیتے کہ اس نے ہماری روایات کو توڑا ہے۔ البتہ لڑکوں کو علاقے کے اسکول میں پڑھایا جاتا اور بعد میں وہ شہروں کی طرف بھی پڑھنے کی طرف نکل جاتے۔ میرے ننھیال اور ددھیال سبھی اسی علاقے میں رہتے تھے اور سبھی آپس میں رشتہ دار بھی تھے۔ خوش قسمتی سے میرے ایک ماموں جو پڑھائی کے بے حد شوقین تھے، وہ گاؤں کے مڈل اسکول سے پڑھنے کے بعد قریبی شہر ڈیرہ چلے گئے۔ جب انہوں نے میٹرک کر لیا تو مزید تعلیم کے لیے پہلے ملتان اور پھر وہاں سے لاہور چلے گئے۔ بتاتی چلوں کہ ان کے ایک چچا لاہور میں پہلے ہی سکونت اختیار کر چکے تھے۔ وہ بھی میرے ماموں کی طرح ہی پڑھائی کی خاطر نقل مکانی کر چکے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کو سرکاری نوکری مل گئی اور پھر ان کا تبادلہ لاہور ہو گیا۔ رفتہ رفتہ ترقی کرتے کرتے اچھے عہدے پہ جا پہنچے۔ ان کو اس شہر کی رونقیں پسند تھی، لہٰذا وہیں مستقل سکونت پذیر ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی وہیں سے تعلیم دلوائی۔ مزید تعلیم کی خاطر جب میرے ماموں نے اپنے اس چچا کے گھر لاہور میں قیام کیا تو خوب جی لگا کر پڑھا، اور یہاں تک کہ انہوں نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا۔ یوں ایک بارانی علاقے کا قبائلی لڑکا لاہور میں اعلیٰ آفیسر کی پوسٹ تک جا پہنچا کہ تب جس کا کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہمت مردہ مدد خدا، بندہ لگن سے محنت کرے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے علاقے کی کل آبادی قبائل پر مشتمل تھی اور اکثریت کے گھر پہاڑوں کی کھو کے اندر بنے ہوئے تھے، جہاں نہ تو بجلی تھی نہ دیگر سہولیات۔ یہ قدیم قبائل کے مسکن تھے، سو ان کی ریت اور روایت بھی صدیوں پرانی تھی۔ جہاں کے مرد کاروبار اور روزگار کی خاطر سفر کرتے اور بڑے شہروں کو آتے جاتے رہتے، لیکن عورتیں اپنے علاقے سے باہر نہ جاتی تھیں۔ سخت رواج تھے۔ عدالت کا نظام بھی قبائلیوں کا اپنا ہی رائج تھا، حتیٰ کہ انگریزوں کی راجدھانی میں بھی یہ لوگ اپنے فیصلے خود کرتے۔ یہاں جرگہ سسٹم رائج تھا۔ یہ لوگ انگریزوں کا قانون بھی نہیں مانتے تھے۔ کسی کے جرم و گناہ کی سزا کا فیصلہ جرگے کے سربراہ ہی کرتے تھے۔ یہاں یہ رواج تھا کہ ایک بار کسی لڑکی کا رشتہ طے ہو جاتا تو جیسے اسی کے نام ہو جاتی تھی، جیسے کہ وہ رشتہ نکاسی حیثیت رکھتا تھا۔ اس لڑکے کے علاوہ اس لڑکی کی کہیں کسی اور سے شادی نہیں ہو سکتی تھی، چاہے وہ بوڑھی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ہمارے علاقے میں دشمنی نسل در نسل چلتی تھی۔ خاندان کے خاندان اسی دشمنی کی نظر ہو جاتے تھے۔ میرے والد کا تعلق بھی ایسے ہی ایک قبیلے سے تھا، تاہم سخی شہر قریب ہونے کی وجہ سے وہ میٹرک تک پڑھ لکھ گئے۔ راکھی منہ گاؤں میں جب پہلی ہائی اسکول کھلا تو کسی مقامی استاد کی ضرورت پڑ گئی۔ میرے والد صاحب واحد شخص تھے جو میٹرک پاس تھے اور شہر سے ٹیچر ٹریننگ کورس بھی کر رکھا تھا، بس انہیں اس اسکول میں سرکاری استاد کی حیثیت سے ملازمت مل گئی۔ یوں گورنمنٹ ٹیچر ہونے کے ناطے ان کو کبھی کبھی لاہور محکمہ تعلیم جانا پڑتا تھا، جہاں ان کے سالے کا گھر تھا اور انہی کے گھر قیام کرتے تھے۔ ماموں ان کی او بھگت اور خوب خاطر تواضع کرتے۔ وہ اکثر کہتے، جمال خان تم بھی یہیں شفٹ ہو جاؤ، وہاں اپنے علاقے میں سوائے دشمنی اور جہالت کے رکھا ہی کیا ہے، تم یہاں آ جاؤ اور اپنے بچوں کو اچھے اداروں میں تعلیم دلواؤ۔ لیکن میرے والد صاحب اپنے علاقے کو نہ چھوڑنا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ادھر ہی سکون سے ہوں، لہٰذا وہ ہر بار ماموں جان کی تجویز کو رد کر دیتے۔ بالآخر ماموں کہتے، چلو تم نہ آؤ چاہے، لیکن اگر تمہیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہو تو ان کو میرے پاس لاہور بھیج دو، میں انہیں اپنے پاس رکھ لوں گا۔ ان دنوں میرا بھائی منصور خان جو مجھ سے 1 برس چھوٹا تھا، میرے والد صاحب تڑکے اسکول جاتے ہوئے اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ بچپن میں اسکول سے میرا چھوٹا بھائی جب قاعدہ لاتا، اس میں رنگین تصویریں دیکھ کر میرا بھی دل کرتا کہ میں بھی اسکول جاؤں اور پڑھوں۔ جب وہ اپنا بستہ رکھتا میں اس کو کھول لیتی اور کتابیں نکال کر رنگین تصویریں دیکھتی رہتی۔ ایک روز ماموں لاہور سے ہمارے گاؤں آئے۔ امی بیمار تھیں، اسی لیے وہ ان سے ملنے کے لیے آئے۔ مجھے منصور بھائی کے قیدے کو گھورتے پایا تو بولے، آؤ مجھے سناؤ کیا پڑھ رہی ہو۔
میں نے آگے سے मासूमियत से कहा, तस्वीरें देख रही हूँ। मुझे भाई की किताब में छुपी ये तस्वीरें बहुत अच्छी लगती हैं। मेरा दिल करता है मैं भी इसके साथ स्कूल जाऊँ और रोज़ ऐसी किताबें देखूँ। वो मुझे कहने लगे, क्या तुम्हारा जी चाहता है कि तुम भी ये किताबें पढ़ो? मैंने एक बार फिर से मासूमियत से कहा, हाँ मामू, मेरा स्कूल जाने को दिल चाहता है, लेकिन मैं नहीं पढ़ सकती। मैं तो बस छुप कर मंसूर भाई की किताबों को देखती हूँ। वो कहने लगे, क्या तुम मेरे साथ लाहौर चलोगी? वहाँ मैं तुम्हें एक बहुत अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दूंगा और इससे भी ज़्यादा अच्छी अच्छी किताबें तुम्हें मिलेंगी। मैंने खुशी से कहा, हाँ मामू, क्यों नहीं, अगर आप ले जाएं तो मैं ज़रूर चलूँगी। लेकिन बाबा जान मुझे कब जाने की इजाज़त देंगे? पढ़ते तो सिर्फ लड़के ही हैं, मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? और बाबा जान मुझे खुद से इतनी दूर कभी नहीं भेजेंगे। वो कहने लगे, तुम फिक्र नहीं करो, मैं खुद इनसे इजाज़त ले लूँगा। इस रोज़ जब मेरे बाबा जान स्कूल से पढ़ा कर लौटे तो मामू ने इनसे मेरे बारे में बात की और पूछा, क्या मैं इसको अपने साथ लाहौर ले जा सकता हूँ? मैं इसे वहाँ पढ़ाना चाहता हूँ। आप तो जानते हैं यहाँ तो ना लड़कियों का कोई स्कूल है, ना ही बच्चियों को पढ़ाने का रिवाज है। मेरे वालिद साहब लाख कबीले के रवायात के पाबंद सही, मगर वो खुद एक उस्ताद थे। शहर से मैट्रिक किया था और लाहौर भी आते जाते रहते थे। कदीम कबायली ज़रूर थे, लेकिन ननिहाली शहरी होने के सबब वो बहुत ज़्यादा कदामत पसंद न थे। कुछ सोच विचार के बाद वो कहने लगे, मुझे तो एतराज़ नहीं, लेकिन मेरे भाई बहनें और रिश्तेदार इस बात पर राज़ी ना होंगे। वो लोग तो मेरा नाटका बंद कर देंगे कि बेटी अब घर से बाहर निकल कर पढ़ने जाएगी। मामू कहने लगे, आप इनको मत बताना कि इसको लाहौर में पढ़ा रहे हैं, यही कहना कि मामू के घर रहने के लिए गई है। वालिद साहब कहने लगे, मगर ये बात भला कब तक छुपी रह सकती है? मामू कहने लगे, जब तक छुपी रह सकती है तब तक छुपा के रखो, मेरे पास रहने दो, कोई ज़्यादा मसला बन जाए तो ले आना। गर्ज बहुत हील हिज्जत के बाद मामू मुझे लाहौर अपने साथ ले आए। दूसरी तरफ मेरी अम्मी बीमार थी और जहाँ सहूलियात बिल्कुल ना होने की वजह से मेरी अम्मी की बीमारी का कुछ पता न चल रहा था। जहाँ पहाड़ों से मीलों सफ़र करके इन्हें शहर के अस्पताल ले जाना पड़ता था, जहाँ चंद एक डॉक्टर होते और मरीजों की लंबी लंबी कतारें होती। डॉक्टर हर दफ़ा बस आले टाले कर देते और जो मेरी माँ दिन ब दिन मज़ीद बीमार होती जा रही थी और इनकी बीमारी की किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरे मामू ने जब ये सूरत हाल देखी तो इनको भी अपने साथ ही ले आए ताकि लाहौर के किसी बड़े अस्पताल में इनके तिब्बी टेस्ट और इलाज वगैरह करवा सके। मेरी अम्मी ने एक माह मामू के घर क़याम किया और इस दौरान इनका अच्छे से इलाज वगैरह हुआ। जब वो पूरी तरह ठीक हो गई तो मामू खुद इनको गाँव वापस छोड़ आए, मगर मुझे अपने पास ही रखा, जहाँ उन्होंने मुझे अपनी बेटी के साथ ही इसके स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो मेरी ही हम उम्र थी, हम दोनों इकट्ठे स्कूल जाती, इकट्ठे खाना खाती, खेलती और एक ही कमरे में सोती। मेरी इस कज़न का नाम मनज़्ज़ा था। मनज़्ज़ा का एक ही भाई था और कोई बहन ना थी। मेरे आने से इसकी ये कमी पूरी हो गई और वो बहुत खुश रहने लगी। मेरी ममानी लाहौर से ही थी, वो मुझसे खुश रहती और मेरा काफ़ी ख्याल रखती। वो पढ़ी लिखी थी और तंग नज़र बिल्कुल ना थी। मामू का घर तो गोया मेरे लिए जन्नत था। कहाँ एक पहाड़ी गाँव की ज़िंदगी और कहाँ ये पुररौनक शहर। मैं तो यहाँ की गहमा गहमी और ख़ूबसूरती को देख कर ही शशदर रह गई थी। यहाँ हर चीज़ आसानी से दस्तयाब थी, नित नई चीज़ें खाने को और अच्छे अच्छे लिबास पहनने को मिल रहे थे। बाबा जान ने कभी अपने गांव से शहर मुंतकिल होने का ना सोचा, जबकि मामू जान तो इनको कायल करने की सही करते रहते, मगर वो कायल ना हुए। हर बार यही कहते कि मैं यहाँ खुश हूँ, प्राइमरी स्कूल का टीचर भी हूँ, 2 बारानी फसलों से इतनी आमदनी हो जाती है कि साल भर चैन की बस्ती बजाता हूँ। नौकरी मिल गई है, इज़्ज़त के साथ सरकारी अलाउंस लग रहा है। बड़े शहरों में सिवाय हंगामे के क्या रखा है? सुकून तो यहाँ पहाड़ों में ही मिलता है, जहाँ हर जानब पुरसुकूनी है। मैं दिल से चाहती थी कि मेरे वालिद अब वो गाँव छोड़ दें, लिहाजा मुझे अपने वालिद साहब की ये बातें बिल्कुल अच्छी ना लगती थी। मैं सोचती, न जाने ये कैसा दिमाग रखते हैं कि यहाँ की दिलकश ज़िंदगी इनको ना लुभा सकी। मैं तो इस पर रौनक और रंगीनियों वाली ज़िंदगी को देखकर झूम उठी थी। इतनी रौनक, इतनी दौलत, इतना हुस्न कि जैसे और ही दुनिया में पहुंच गई थी। मैं पहाड़ों की बात से तसव्वुर भी ना कर सकती थी कि शहर इतने खूबसूरत होते हैं। अब मैं और मेरे मामू की बेटी मैट्रिक में पहुंच गई थी। मेरे मामू के घर का माहौल नहायत पकीज़ा था। वो यहाँ आकर भी अपनी रवायात को नहीं भूले थे। मुझे और मनज़्ज़ा को कहीं अकेले आने जाने की इजाज़त ना थी। मनज़्ज़ा एक कम गो और शर्मीली सी लड़की थी। वो हम घर वालों के सिवा किसी से ज़्यादा फ्री होती, ना ही बातें करती। जब हम मैट्रिक कर लिया तो मेरी वालदा ने इसरार शुरू कर दिया कि इसको हमारे पास भेज दो। जब मामू ने मुझसे इस बारे में पूछा तो मैं रोने लगी कि मैं वहाँ हरगिज़ नहीं जाऊँगी। मैं अब आगे भी मनज़्ज़ा के साथ ही पढ़ूँगी।
मामू अब अजीब कश्मकश का शिकार थे। उधर वालिद साहब इन्हें मेरे भेजने पर इसरार कर रहे थे, इधर मैं जाने को बिल्कुल भी राजी न थी। अब वालदा और वालिद आकर मिल मुझे जाते, हर बार साथ जाने को भी इसरार करते, मगर मैं इनके साथ जाने का नाम ना लेती। मामू और ममानी इनको समझा बुझाकर भेज देते कि एफ ए तक पढ़ने दो, इसके बाद हम इसको खुद ही ले आएंगे। इधर गाँव में मेरे भाई ने मैट्रिक कर लिया तो आगे तालीम हासिल करने का मसला दरपेश हुआ। मेरा दिल चाहता कि वो भी लाहौर आ जाए और कॉलेज में दाखिला ले लें, लेकिन मेरी वालदा इसको बहुत चाहती थी, इसे खुद से दूर न करना चाहती थी कि बेटी तो पहले ही दूर थी और अब मुझे भी मामू के हवाले करके पछता रही थी कि मैं वापस इस माहौल में अब जाना नहीं चाहती थी कि जहाँ ना बिजली थी, ना गैस, ना सड़कें। लोग जोहड़ों से बदबूदार पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर थे या बारिश का जमा शुदा पानी जानवरों के साथ साथ इंसान भी इस्तेमाल करते थे। वहाँ कोई अस्पताल ना था, ना शफा, ना कोई बीमार हो जाता तो पहाड़ों से उतरते और शहर तक पहुँचते ही मरीज़ का दम निकल जाता था। जब से मैंने लाहौर आकर शहरी ज़िंदगी को देखा था, पहाड़ अब मुझे खौफनाक लियो जैसे मालूम होते। ये तो मेरी खुशबख्ती थी कि मेरे वालिद तालीम की अहमियत को समझ चुके थे। उन्होंने मुझे मामू के घर रहने की इजाज़त दी, वरना कहाँ मुमकिन था कि 1990 के ज़माने में मैं कोहे सुलेमान की बासी किताब हाथ में लेती। लाहौर आकर कॉलेज में पढ़ना तो मेरे भाई मंसूर खान का भी ख्वाब था, लेकिन एक मसला ये भी था कि मनज़ा अब बड़ी हो चुकी थी। ममानी के वालिदैन बेटी को कहते कि घर में तुम्हारी जवान लड़की है, क्यों तुमने शोहर की भांजी रख ली है। अब जबकि तुम्हारा अपना बेटा भी बड़ा हो गया है तो शोहर की भांजी को घर रखना ठीक नहीं। अब इसको वापस इसके वालिदैन के पास भेज दो। ममानी अब मंसूर खान की जहाँ आने से बिल्कुल हक में ना थी कि मनज़ा बड़ी हो चुकी है। एक रोज़ जब मैंने ममानी की वालदा को इन्हें ये कहते सुना तो दिल बुझ गया रह गया। अब दिन भर सोचती क्या ही कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा भाई भी जहाँ मेरे साथ आकर कॉलेज में दाखिला ले ले। इन दिनों नादान उम्र में थी, इतनी समझ बूझ भी ना थी। सोचती मनज़ा के होते हुए मंसूर भाई का यहाँ आना मुमकिन नहीं, लेकिन अगर मनज़ा ही इस घर से चली जाए तो मुमकिन हो सकता है, और वो इस सूरत में मुमकिन था अगर इसकी शादी हो जाए। अब मैं हर दम ये सोचने लगी कि कुछ ऐसा करूँ कि मेरा भाई यहाँ मेरे पास आ जाए। नमाज में दुआ करती कि जा अल्लाह जल्द मनज़ा की शादी हो जाए ताकि वो अपने घर चली जाए और फिर मामू ममानी मेरी भाई मंसूर को अपने घर बुला लें। मामू ममानी शायद इसकी शादी कर भी देते, लेकिन अभी तक मनज़ा का कहीं से कोई रिश्ता नहीं आया था, लिहाजा इसकी शादी का दूर दूर तक इम्कान न था। तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया। इस बार जब साद मेरे मामू साद के पास इसे मिलने आया तो मैंने ड्राइंग रूम में निकलते इसे देखा तो ये ख्याल मेरे जहन में लपका। दरअसल साद हमारे पड़ोस में जो फैमिली रहती थी, इनका बेटा था और मेरे मामू ज़ाद ताहिर का हम उम्र था। वो कभी कभार ताहिर से मिलने इसके पास आया करता तो ताहिर इसको ड्राइंग रूम में बिठाता था। मैंने इसे आते जाते कुछ बार देख रखा था। साद काफ़ी खूबसूरत था, वो इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था और ये काफ़ी खुशहाल लोग थे। ममानी का इनके घर कभी कभार आना जाना होता था, ताहम साद की बहन शाज़मा जो मेरी ही हम उम्र थी हमारे पास आती जाती रहती थी। इसकी मनज़ा और मुझसे काफ़ी दोस्ती थी। मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं साद को मनज़ा की जानब लगा दूँ ताकि वो अपने वालिदैन को कहकर मनज़ा का रिश्ता भेजे और यूँ इसकी शादी हो जाए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मनज़ा तो सीधी सादी सी लड़की थी, इसने शायद साद के बारे में कभी सोचा भी ना होगा, लेकिन मैं साद की बहन के ज़रिए इसके दिल में मनज़ा की मोहब्बत तो पैदा कर सकती थी। इसी मंसूबे को अब मैंने अपना मकसद बना लिया। एक दिन जब साद की बहन हमारे पास आई तो मैंने मौका तलाश करके इससे बात शुरू की। मैंने कहा, इससे हो अच्छा, क्या तुम्हारा भाई इंजीनियरिंग कर रहा है? वो कहने लगी, हाँ, मगर आज तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने बातों बातों में इससे कहा कि मनज़ा इसे पसंद करती है। इसने ये बात सिर्फ मुझे ही बताई है। इसने मुझे मना कर रखा है कि तुम ये बात किसी से मत कहना और शाज़मा को भी इस बारे में कुछ मत बताना, लिहाजा तुम अब इससे इस बारे में मत पूछना, वरना इसको यही लगेगा कि मैंने ही तुम्हें सब बता दिया है। लेकिन वो तुम्हारे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और ये बात इसने अपने दिल में ही रखी हुई है। तुम तो जानती हो कि वो किस कदर शर्मीली है। वो अपने दिल की बात साद से कभी ना करेगी और मुझे ये डर है कि कहीं मामू इसका कहीं और रिश्ता ही ना तय कर दें और इसकी शादी कर दें। इस बेचारी के दिल की बात तो दिल ही में रह जाएगी, क्योंकि इस बात से साद भी बिल्कुल बेखबर है। और तुम क्यों नहीं इसको अपनी भाभी बना लेती? तुम अपनी वालदा से कहकर इसका रिश्ता भेजो। वो मेरी बात सुनकर जैसे हैरान हुई। कुछ देर की खामोशी के बाद बोली, जिस लड़की को मेरा भाई साद पसंद करेगा, जाहिर सी बात है हम इसी से इसकी शादी करेंगे, क्योंकि वो हमारी पसंद से शादी नहीं करेगा और इसने अम्मी को यही कह रखा है। मैंने तजस्सुस से पूछा कि क्या इसको कोई लड़की पसंद कर ली है? वो कहने लगी, नहीं, अभी तक तो नहीं की, लेकिन वो करेगा अपनी पसंद से ही शादी। मैंने इससे कहा, लेकिन तुम मनज़ा की बात इसके कान में डालो तो सही,
हो सकता है मेरी कज़न इसको पसंद आ जाए। देख तो शायद इसने पहले ही इसको रखा हो। अगर नहीं भी देखा तो लड़की को देखेगा तो फिर पसंद कर लेगा। वो कहने लगी, नहीं, लेकिन कैसे दिखाऊं? मैंने कहा, तुम मनज़ा की तस्वीर किसी तरह इसे दिखाओ और फिर वो किसी बहाने इसे असल में भी देख लेगा। ताहिर भाई के पास तो आता रहता है। वो कहने लगी, लेकिन मनज़ा तो शायद इसके सामने नहीं जाती क्योंकि तुम लोगों के घर का माहौल काफ़ी सख्त है। मैंने आगे से कहा, अरे भाई एकेडमी आते जाते तो देख लेगा ना, तुम पहले इसकी तस्वीर तो अपने भाई को दिखाओ। वाकई मनज़ा तुम्हारे भाई को बेहद चाहती है। मैंने अपनी तरफ से खूब बना सवार के झूठ बोला। हालांकि बेचारी मनज़ा के तो फरिश्तों को भी एक कुछ इल्म न था। अब मैंने अपनी कज़न की एक तस्वीर ढूंढकर शाज़मा को दे दी। साथ में ताकीद भी की, तस्वीर दिखाकर मुझे वापस ला देना। मैं डरती भी थी कि कहीं कोई मसला ही न बन जाए। मैंने साथ में शाज़मा को ये ताकीद कर दी कि मनज़ा को इस बात की बिल्कुल भी पता न चले कि मैंने तुम्हें कोई तस्वीर दी है या तुम्हें इसके दिल की बात बता दी है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि अगर हम दोनों की मदद से ही इसके दिल की मुराद भर आए तो इसके लिए कितना अच्छा हो जाए। इसीलिए मैं इसको बताए बगैर ये सब कर रही हूँ। शाज़मा भी कोई तेज़ तरार लड़की ना थी, या शायद मेरी एक्टिंग ही इतनी कमाल की थी कि मेरी बातों में आ गई, क्योंकि वो खुद भी मनज़ा की बहुत अच्छी दोस्त थी और इसकी आदतों को काफ़ी पसंद भी करती थी। बस इसने तस्वीर ले जाकर अपने भाई को दिखाई और कहा कि ये लड़की आपको पसंद करती है और बहुत खूबसूरत है, आदत की भी बहुत अच्छी है, तुम्हारे दोस्त ताहिर की बहन है ये। अगर तुम्हें अच्छी लगी तो अम्मी से कहो कि इसके साथ तुम्हारा रिश्ता कर दें। साद ने आगे से इसे कहा कि पहले मुझे इम्तिहान तो दे लेने दो, अभी से तुम्हें मेरी शादी की पड़ गई। यूं एक नज़र अपने भाई को दिखाने के बाद शाज़मा ने वो तस्वीर अपने पास रख ली और फिर मुझे वापस ही ना की। जब भी मैं इससे मांगती वो आजकल करके टाल देती। इस तरह वक्त गुजरता गया। मैंने भी दोबारा इस तरफ ध्यान ना दिया। हमारे एफए के इम्तिहानात हो गए और मुझे बलाखिर अपने गांव वापस लौट आना पड़ा। भाई ने भी एफए का इम्तिहान दे दिया था। इसकी अब यूनिवर्सिटी जाने की बारी थी। इधर शाज़मा के भाई के इम्तिहान ख़त्म हो गए और जल्द ही इसकी मुलाजमत इस्लामाबाद में हो गई, तो वो सारी फैमिली इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई। वहाँ जब साद की शादी की बात चली तो शाज़मा ने माँ को मनज़ा के बारे में बताया। साद से भी पूछा गया। वो तस्वीर तो देख ही चुका था, बहन से लेकर दोबारा भी देखी और फिर माँ से कहा कि इसी लड़की से मेरी शादी कर दें। ये हमारे पुराने पड़ोसी हैं और देखे भाले लोग हैं। मनज़ा बहुत अच्छी लड़की है, मैं ताहिर को भी जानता हूँ और इनके घर का माहौल पाकीज़ा है। फिर आंटी ने साद के वालिद को राज़ी कर लिया और वो बीवी के हमरा लाहौर मामू के पास मनज़ा का रिश्ता तलब करने आ गए। मामू ने साद के वालिद से कहा कि बेशक आप अच्छे लोग हैं और हमारे पुराने पड़ोसी हैं, मगर मैं आपको बेटी का रिश्ता नहीं दे सकता क्योंकि हम बरादरी से बाहर बेटी का रिश्ता नहीं करते। साद के वालिदैन इसरार करने लगे कि आप लोग इनकार ना करें। मामू कहने लगे, माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ कि हम बरादरी के बाहर रिश्ता नहीं करते और इस मजबूरी के बायस फिर मैं क्यों इनकार ना करूँ। जब वो लोग बज़िद हो गए तो मामू भी जैसे गुस्से में आने लगे। इस पर साद के वालिद ने गुस्से में कह दिया कि आप लोग हमें घर आए यूँ जलील कर रहे हैं जबकि आपकी बेटी भी हमारे बेटे को पसंद करती है। इस पर मामू तैश में आ गए, कहने लगे, आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि मेरी बेटी आपके बेटे को पसंद करती है? मेरी बेटी तो शायद इसको जानती भी ना हो। मैं आप लोगों को रिश्ता देने से इनकार कर रहा हूँ तो आप लोग मेरी बेटी पर इल्ज़ाम तराशी पर आ गए। आपको कुछ शर्म करनी चाहिए। मैं सिर्फ इस बात का लिहाज कर रख रहा हूँ कि आप लोग हमारे पुराने पड़ोसी हैं, वरना अभी चलता करता, मगर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आपके दिल में जो आए कहते जाए। इस पर साद के वालिद ने भी तैश में आके कहा कि हम यूं ही नहीं कह रहे, आपकी बेटी ने खुद अपनी पसंद जाहिर की थी, वो हमारे बेटे को पसंद करती है। देखिए, इसने अपनी तस्वीर भी साद को दे रखी है। अंकल ने मनज़ा की वो तस्वीर जेब से निकाल कर मामू को दे दी। तस्वीर देखकर मामू का रंग बदल गया। उन्होंने बेटी की तस्वीर उठाकर जेब में रख ली। जब वो लोग चले गए तो उन्होंने मनज़ा को बुलाकर इसकी तस्वीर दिखाई और कहा कि ये तस्वीर तुमने पड़ोसी के घर क्यों भिजवाई थी? वो इस तस्वीर को देखकर हैरान रह गई। हैरत के मारे इसकी ज़ुबान घंग हो गई, मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकाल सकी। मनज़ा की खामोशी से मामू ने यही समझा कि शायद तस्वीर इसी ने साद को दी है। वो लाख रोशन ख्याल सही, मगर इस मामले में अभी तक कदामत पसंद ही थे। उन्होंने मेरे वालिद साहब को बुलवाया और कहा कि मैं मनज़ा का रिश्ता आपके बेटे से करने का ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन एक शर्त है, अगर आपको मंजूर हो तो। मंसूर खान यहाँ लाहौर आकर मेरे पास रहेगा, मैं इसे लाहौर में ही पढ़ाऊँगा, फिर इसकी मनज़ा से शादी होगी। शादी के बाद मेरी बेटी लाहौर में ही रहेगी। मंसूर खान इसको गाँव नहीं लेके जाएगा क्योंकि वो वहाँ न रह सकेगी। इस सख्त ज़िंदगी की वो आदी नहीं है।
البتہ جہاں رہ کر تمہارے بیٹے کی زندگی بن جائے گی، وہ تعلیم بھی حاصل کر لے گا اور میں اس کی اچھی نوکری بھی لاہور میں لگوا دوں گا۔ کچھ سوچ کر میرے والد صاحب نے ماموں کی شرط مان لی۔ منصور خان کی شادی منزہ سے ہو گئی۔ اس کا لاہور جا کر تعلیم حاصل کرنے کا خواب بھی پورا ہو گیا۔ ممانی مجھے اچھی طرح دیکھ پرکھ چکی تھی۔ میں 10 برس ان کے گھر رہی تھی۔ انہوں نے ماموں کو تجویز دی کہ کیوں نہ ہم طاہر کے لیے منصور کی بہن کا رشتہ لے لیں۔ دونوں بہن بھائی لاہور میں ہی رہیں گے تو آپا اور اس کے شوہر بھی یہاں آ جائیں گے۔ دراصل شاید ممانی نے عرصہ قبل ہی مجھے بہو بنانے کا سوچ لیا تھا۔ وہ مجھے کافی پسند کرتی تھی۔ جب ماموں نے میرا رشتہ طاہر کے لیے بابا جان سے مانگا تو منزہ بہت خوش ہوئی، لیکن اب یہ مسئلہ تھا کہ میرے دودھیال والے میرا رشتہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ میرے چچا مجھے اپنے بہو بنانا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے میرے والد صاحب کو اپنے بیٹے کے لیے مجبور کیا۔ چچا تو کافی دیر سے میرا رشتہ حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن میرے والد صاحب بھی انہیں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ منصور بھائی بھی ابو اور چچا لوگوں کی طرف زیادہ تھے، لیکن منزہ نے منصور کو بھی قائل کر لیا کہ وہ اپنے والدین کو راضی کرے۔ منصور بھائی نے گاؤں جا کر والدین کی منت کی، بلکہ اس چچا کی بھی منت سماجت کی جو میرا رشتہ ماموں کی طرف نہ ہونے دے رہے تھے۔ اس طرح میرا بھی لاہور میں رہنے کا خواب پورا ہو گیا۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ منزہ میری اور میں اس کی بھابھی بنی تھی اور ہمارا ساتھ نہ چھوٹا تھا۔ تاہم آج تک منزہ کو یہ علم نہیں تھا کہ محض اپنے بھائی کو لاہور لانے کی خاطر اس کی تصویر میں نے شازمہ کو دے کر اس بیچاری کو والدین کی نگاہوں میں مجرم بنا دیا تھا۔ اس بات کا مجھے آج بھی بہت پچھتاوا ہے، لیکن وہ نادانی والی عمر تھی، میری اسے نقصان پہنچانے کی نیت ہرگز نہ تھی۔ میں اس غلطی پر آج بھی اپنے رب سے معافی کی درخواست گواہ ہوں۔ صد شکر کہ شازمہ نے یہ راز نہ کھولا، ورنہ منزہ کے دل میں میرے لیے نفرت کے جذبات جنم لے سکتے تھے اور ماموں ممانی بھی مجھ سے بدگمان ہو جاتے۔ بے شک ان لوگوں کو ہم پر بہت احسانات تھے، اگر انہیں پتہ چل جاتا تو نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچتے، لیکن بے شک میرا رب ہی انسان کا پردہ رکھنے والا ہے، اس نے بھی میرا پردہ رکھ لیا۔ نادان عمر میں لڑکیوں سے بلا شبہ کبھی کبھار غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے میری غلطی کا نتیجہ اچھا نکلا، ورنہ شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ سب بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔